dear students. How are you all? I hope you all are very good. Let's start the new chapter today of class 7 science, that is chapter number 5 about reproduction in plants. Students, reproduction is a life process through which a living organism produces new individuals of their own kind. And in this session, we are going to learn about the two different modes of reproduction in the plants, that is sexual reproduction and another is asexual reproduction. And then we will study about the different ways which are under the head of these sexual or asexual reproduction in plants. Further, all right? So now start and learn about it. So as I told you, the process by which species propagates or continues is called reproduction. एक ऐसा process जिससे species आगे continued रहती है, propagate करती है, उसे हम कहते हैं reproduction process. Reproduction एक one of the biological process है जो कि एक organism के through carry out किया जाता है and एक major characteristic है living being का. ठीक है? Reproduction ही क्या करता है? Reproduction के through ही life continued रहती है as an unbroken chain from generation to generation. Now the methods, जो reproduction के methods हैं, उनमें काफ़ी diversity होती है. Alright? Offsprings may be produced from a single individual or by the participation of two individuals. ठीक है? Offspring कैसे produce होते हैं इसमें? या तो एक single individual के through या two individual के participation से offsprings produce होंगे. If we talk about asexual reproduction, so asexual reproduction में क्या होता है? एक single parent is all that is needed. ठीक है? Single parent के through ही एक new individual produce हो सकता है in asexual mode of reproduction. As we all know, flowers क्या करते हैं? Plants में reproduction function को perform करते हैं. ठीक है? Flowers fruits में change होते हैं जिनके अंदर seeds present होंगी. And seeds germinate होती हैं new plants को produce करने के लिए. So therefore, the flowers क्या है? Flowers are the reproductive part of a plant. All right, remember it. Now plants do not only produce from flowers. Plants केवल flowers के through ही reproduce नहीं करते बल्कि उनके पास several other ways और भी हैं to reproduce. For example, some new plants can be produced by birds, leaves or tubers. If we talk about yeast, तो yeast में जो buds हैं वो out of the body grow करते हैं of the parent organism. Now, in plants, we have two main modes of reproduction, that is asexual, other is sexual. First of all, we'll talk about asexual. So, asexual एक ऐसा mode of reproduction है जिसमें new plants आपके produce होते हैं from the parent plant without the production of seed. पेरेंट प्लांट के थ्रू न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे लेकिन इसमें सीड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में. ठीक है? सो दैट मीन्स बेसिकली इस मोड में फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नाउ डिफरेंट वेज आर देयर. अब प्लांट्स में एसेक्सुअल प्रोडक्शन के भी डिफरेंट वेज, दैट इज बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट बडिंग. सो बडिंग में क्या होता है? एक बड लाइक प्रोजेक्शन है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगा. ठीक है? जिसे आप बड कहेंगे. अब ये बड बॉडी से सेपरेट हो जाता है एंड एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है. ठीक है? बडिंग आपका ईस्ट, स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिजम्स में काफी कॉमन है. ऑलराइट, सी दे हैव गिवन यू, दिस इज टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन ईस्ट सेल. सो आपको ईस्ट पाउडर लेना है, वार्म वाटर एंड शुगर. सबसे पहले 100 ml वार्म वाटर लेंगे कंटेनर में, उसमें 10 ग्राम ऑफ शुगर ऐड करनी है एंड ईस्ट पाउडर टू द फ्लास्क. देन वी विल स्टिर इट वेल, है ना, एंड एक वार्म प्लेस में उसको रख देंगे. आफ्टर 1 आवर व्हाट यू विल सी, आपको उसके अंदर एक इस मिक्सचर के एक ड्रॉप को आपको स्लाइड पे रखना है आफ्टर 1 आवर एंड देन यू विल ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. ठीक है? व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि कुछ बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो उन ईस्ट सेल से बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड विच आर कॉल्ड बड्स. हर एक बड ग्रो करेगा एंड न्यू ईस्ट सेल्स बन जाते हैं व्हेन इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? फ्रेगमेंटेशन. Now the green patches that floats in ponds and freshwater puddles are algae. I hope you all must have seen it. है ना? green patches आपने देखा होगा ponds में, जो fresh water के puddles होते हैं उनमें कुछ green patches देखने को मिलते हैं which are called algae.
अब स्टूडेंट्स इफ यू टॉक अबाउट एल्गी, तो एल्गी जो है दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड पार्ट्स, एल्गी के स्पेशलाइज्ड पार्ट्स नहीं होते लाइक लीव्स, स्टेम और फ्लावर्स, बट ये प्लांट के जैसे लिविंग बींग्स होते हैं जो कि मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ऑलराइट, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा क्या है? कॉमन फ्रेश वाटर एल्गी है। इस एल्गी को आप पॉन्ड्स में देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन स्लाइम, ठीक है। जब कंडीशंस आइडल एंड होती हैं, एनफ न्यूट्रिएंट्स इनके लिए अवेलेबल होंगे, तो एल्गी का फिलामेंट 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है ऑन इट्स ओन, एंड हर एक फ्रेगमेंट फिर आगे चल के एक न्यू स्पायरोगायरा में डेवलप होता है। Alright, you could see this is the fragmentation process which takes place in Spirogyra, which is a kind of algae. Next we have what? Spore formation. Spore formation भी asexual mode reproduction है, ठीक है। asexual reproduction का ही mode है in some organisms like fungi, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एक globular structure rise होता है which is called sporangium, and इसके अंदर spores होते हैं। In favorable conditions में sporangium burst होता है so that spores बाहर रिलीज होंगे, and each of these spores, हर एक spores germinate होके एक new individual प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मॉस, फर्न्स, फंगस, मशरूम, राइजोपस विच इज अ ब्रेड मोल्ड एक्सेट्रा, ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सभी स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, रिमेंबर इट। नाउ अगेन दे हैव गिवन एन एक्टिविटी ओवर हियर, ऑलराइट। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्जर्व द स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड मोल्ड। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक पीस लेना है ब्रेड का, उसमें थोड़ा वाटर स्प्रिंकल करेंगे, उस ब्रेड को एक डार्क एंड मॉइस्ट स्पेस में रखेंगे फॉर अबाउट 2 days, एंड 2 दिन बाद आप उसे ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू सी? मोल्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो इस ब्रेड पे ग्रो कर रहे हैं। इफ यू वांट टू ऑब्जर्व दोज मोल्स देन यू कैन ऑब्जर्व इट विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम हाइफे बोलते हैं, एंड टिनी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जिन्हें स्पोरेंजियम कहा जाता है, इन्हें आप देख पाओगे व्हेन यू विल ऑब्जर्व दैट ब्रेड मोल्ड विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। उस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। कुछ सी, ये हाइफे है, ठीक है, ये स्पोरेंजियम वाला पार्ट है, एंड इसके अंदर ही छोटे छोटे से क्या है? स्पोर्स है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ इन दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन, इस टाइप के प्रोपगेशन और मल्टीप्लिकेशन में प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, वो डेवलप होता है एक न्यू प्लांट में विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी 2 मेथड्स के थ्रू होता है, दैट इज नेचुरल मोड ऑफ प्रोपगेशन और द आर्टिफिशियल मोड ऑफ प्रोपगेशन। नेचुरल मोड ऑफ प्रोपगेशन में डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि इट कुड प्रोपगेट बाय रूट, स्टेम और लीव्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रोपगेशन बाय रूट्स, तो जो डहलिया एंड देन वी हैव व्हाट स्वीट पोटैटोज, इनकी जो रूट्स होती हैं स्टूडेंट्स, इनमें एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं जो कि न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं जब आप इनकी रूट्स को सॉइल में प्लांट करोगे, ठीक है। ग्वावा, शीशम, पॉपुलर्स, ये सभी इनकी जो टैप रूट्स होती हैं इनमें भी एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? प्रोपगेशन बाय स्टेम, ठीक है। सो कुछ प्लांट्स हैं जिनमें अंडरग्राउंड स्टेम्स में बल्ब्स होते हैं लाइक टर्निप, जिंजर, रेडिश, अनियन, गार्लिक एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सभी में बल्ब्स होते हैं, दैट इज ऑक्सिलरी बर्ड्स आप उन्हें बोलेंगे। एंड जब एक पीस ऑफ स्टेम को, जिसमें एक आई यानी कि बड प्रेजेंट होगा, उसे आप सॉइल में प्लांट करोगे, वहां से बड शूट्स को प्रोड्यूस करेगी। देन वी हैव व्हाट? प्रोपगेशन बाय लीव्स। सी द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं इन द नॉचेस ऑफ मार्जिन्स, एंड जब ये लीव्स ग्राउंड पे फॉल करेंगी उनमें से बर्ड्स ग्रो करती हैं एंड देन दे प्रोड्यूस द न्यू प्लांट। So these were the natural modes of vegetative propagation, and now next we come to artificial modes of vegetative propagation. See, the methods of vegetative propagation are used to produce plant artificially in gardens and nurseries. What they say? जो vegetative propagation के methods हैं उन्हें हम artificial तरीके से भी plants को produce करने के लिए use करते हैं gardens and nurseries में, alright? So कुछ common आर्टिफिशियल मेथड्स यहाँ पे गिवन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए,
of the plants, that is cutting, grafting, layering, tissue culture. So first of all we have cutting. कटिंग में क्या किया जाता है, जैसे कि रोज है, शुगर केन, ग्रेप्स, बोगनविलिया एक्सेट्रा. इन प्लांट्स में इनकी जो स्टेम होती है उसमें ऑक्सिलरी बर्ड होती है एट द नोड्स. एंड जब एक पीस ऑफ स्टेम जिनमें कुछ नोट्स एंड बर्ड्स प्रेजेंट होंगे, उन्हें आप एक मॉइस्ट सॉइल में प्लेस करते हो, इट विल गिव राइज टू रूट्स. एंड जो बर्ड होंगी वो शूट में डेवलप हो जाएंगी, एंड लाइक दिस अ न्यू प्लांट विल बी प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट वी हैव ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग मेथड में एक बड़ी सी ब्रांच डिजायर्ड प्लांट की जिसमें अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स भी हो, उसे हम स्केन कहते हैं. इसको आप स्टंप वाले पार्ट के ऊपर प्लेस करेंगे, विच इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ द ट्री. स्टॉक आपका ट्री का वो पोर्शन है जिसमें एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है अंडर द सॉइल. एंड देन दोनों को टाई कर दिया जाता है. ठीक है. कैम्बियल एक्टिविटी जो होती है स्कायन एंड स्टॉक की, वो अलाउ करती है उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए. एंड देन इस मेथड का यूज किया जाता है काफी सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स को ऑब्टेन करने के लिए, लाइक मैंगो, ऑरेंज एंड grapes. All right. Next we have layering. लेयरिंग भी प्रोपोगेशन मेथड है जो कि प्लांट्स के लिए सूटेबल है. कैसे प्लांट्स? जिनमें काफी लेंथी एंड प्लायबल ब्रांचेस होती हैं. इन दिस टेक्निक, एक्चुअली इस टेक्निक में एक ब्रांच या एक स्टेम ओरिजिनल प्लांट के साथ कनेक्टेड रहती है एंड उसको आप डैम्प सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में रखते हैं. ठीक है, जिससे रूट्स की ग्रोथ प्रमोट हो. तो जैसे जैसे रूट्स डेवलप होंगी, न्यू प्लांटलेट्स एमर्ज होते हैं जिन्हें लेटर ऑन पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, एंड देन आप उन्हें इंडिपेंडेंटली कल्टीवेट कर सकते हो. ठीक है. ग्रेप्स, रास्पबेरीज, जैस्मीन, ये सभी एग्जांपल्स हैं प्लांट्स के जिन्हें हम सक्सेसफुली लेयरिंग के थ्रू ही प्रोपोगेट करते हैं. देन द नेक्स्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन इज टिश्यू कल्चर. ठीक है. टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक प्लांट टिश्यूज के रीजनरेटिव पोटेंशियल को हार्नेस किया जाता है सो दैट कंप्लीट न्यू प्लांट्स कुड बी क्रिएटेड. तो लिविंग टिश्यू जो कि एक्टिवली डिवाइड होता है वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होगा एंड एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में प्लेस किया जाएगा. देन इन अ लैबोरेटरी सेटिंग इस टिश्यू को स्पेसिफिक केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है जो कि रूट एंड शूट्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती हैं. एंड जैसे ही वो एक यंग प्लांट में ट्रांसफॉर्म होंगे, जिन्हें हम प्लांटलेट कहते हैं, वो आपके ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं इनटू द सॉइल एट अ नर्सरी, जहाँ पे इन्हें नर्चर किया जाएगा इनटू अ मैच्योर फुल्ली डेवलप्ड प्लांट. ठीक है. प्लांट्स सच एज ऑर्चिड्स, क्रिस्थेनिमस, एस्परगस, ये सभी इसी मेथड के थ्रू ग्रो किए जाते हैं. ऑलराइट. So these were the different modes of asexual reproduction in the plants, and now next we come to the another type, that is sexual reproduction in plants. So as we all know, flower आपके plant का reproductive part होता है जिसमें different parts होते हैं like sepal, petal, stamen and pistil. First of all sepal, तो mostly sepals green color होती हैं and the main function है flower के बाकी सारे parts को protect करना in the form of bud. पेटल्स आपकी लार्ज, ब्राइटली कलर्ड एंड ऑफन फ्रेगनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड द मेन फंक्शन है एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. देन स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. ठीक है. हर एक स्टेमन के अंदर एक फिलामेंट होता है, एंथर होता है एंड एक कनेक्टिव स्टिग्मा. ठीक है. ईच एंथर, हर एक एंथर में 2 लोब्स होंगे जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू यूनाइटेड होते हैं. फिर हर एक लोब के अंदर 2 पॉलन सैक होते हैं जिसके अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स और मेल गेमीट सेल्स ऑफ द प्लांट आर प्रेजेंट. ऑलराइट. नेक्स्ट वी हैव पिस्टल. पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जैसे पार्ट से मिलकर बना है. ठीक है. ओवरी के अंदर कुछ बीड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें ओव्यूल्स कहा जाता है. एक ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमीट और फीमेल सेल होता है विच इज कॉल्ड एग सेल. ऑलराइट. यू कुड सी द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. ठीक है. दिस इज द फीमेल पार्ट, जैसे आप पिस्टल कहते हो और कार्पेल कहते हैं. ठीक है. ये 4 पार्ट से बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल्स. ओके.
दिस इज नोन एज मेल पार्ट विच इज स्टेमन, जो एंथर एंड फिलामेंट से बना है। ये आपके पेटल्स हैं, ये सेपल्स हैं। दिस इज पेडिसल, दिस इज रिसेप्टल। सो ये डिफरेंट पार्ट्स है एक फ्लावर के। Now we have the process of pollination. What is it? The process of transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the same or other flower is called pollination. Pollen grains का transfer होना flower के anther वाले part से उसके stigma वाले part तक। अब वो stigma part same flower का हो सकता है, किसी another flower का हो सकता है, बस pollen grains का transfer होना है anther to stigma. That process is called pollination. ठीक है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्लांट्स खुद से पॉलिनेट हो जाते हैं, बट इन सम केसेस प्लांट्स आपके पॉलिनेट होते हैं अदर प्लांट्स में। ठीक है, पॉलिनेट करते हैं अदर प्लांट्स को भी। व्हाट दे सेइंग कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे प्लांट्स खुद से पॉलिनेट हो जाते हैं, बट इन सम केसेस कुछ प्लांट्स अदर प्लांट्स को पॉलिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, इस बिहाफ पर पॉलिनेशन आपका फर्दर 2 टाइप्स का होता है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जहां पे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के स्टिग्मा में अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि कब होगा, जब एक प्लांट का पॉलन उसके खुद के ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल पी, व्हीट, राइस एक्सेट्रा, इन सभी प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट वी हैव क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में भी क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड फ्लावर एंड रोज फ्लावर, इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, नाउ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज इंसेक्ट एंड विंड, ये मोस्ट कॉमन एजेंट होता है पॉलिनेशन के। एक्वाटिक प्लांट्स के लिए वाटर एक पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह सर्व करता है। पॉलन ग्रेन्स वाटर में रिलीज हो जाते हैं एंड देन वो कैरी किए जाते हैं टू द अनदर फ्लावर बाय वाटर करेंट्स। फिर कुछ और भी एजेंट्स हैं लाइक स्क्विरल, बैट एंड बर्ड्स, दे आल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है, वन सच बर्ड दैट इज हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की एक लॉन्ग बीक होती है जिसको वो यूज़ करती है नेक्टर को ड्रिंक करने के लिए। सो जब वो एक फ्लावर पे विजिट करती है, वो एक्सीडेंटली एंथर्स को रब ऑफ कर लेती हैं, जिनमें से कुछ स्टिग्मा में फॉल हो जाते हैं। So like this, they help in the process of pollination. Now next we have the topic fertilization. So the stigma of a flower, as I told you कि flower का जो stigma वाला part है वो एक sugary liquid release करता है and pollen grains इसी liquid के साथ react करते हैं growth को initiate करके। However, pollen grains आपके तभी grow करेंगे, तभी grow करना शुरू करते हैं जब liquid जो है वो same species के flower में से है। ठीक है, दे विल नॉट ग्रो अगर ये किसी डिफरेंट फ्लावर स्पीशीज के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। फॉलोइंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद एक स्लेंडर ट्यूब होती है जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन्स से एक्सटेंड करेगी थ्रू द पिस्टल एंड इस ट्यूब का काम है मेल सेल को ट्रांसपोर्ट करना। इट कॉन्टिन्यूज ग्रोइंग, ये आपके तब तक कॉन्टिन्यू करेगी ग्रो करना जब तक वो ओव्यूल तक नहीं पहुंच जाती एंड उसमें पेनिट्रेट करती है। ठीक है, फिर मेल सेल आपके ओव्यूल में माइग्रेट करेंगे एंड एग के साथ कंबाइन होकर दे विल क्रिएट जाइगोट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। सीड, नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी में काफी सारे चेंजेस आते हैं, यानी कि वो ग्रो करती है, ट्रांसफॉर्म होती है इनटू अ फ्रूट। ठीक है, वाइन जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स है फ्लावर के वो विदर हो जाते हैं एंड देन दे डिटैच ऑफ। अब फ्रूट एसेंशियली मैच्योर्ड ओवरी होती है, फ्रूट के अंदर सीड्स डेवलप होती हैं फ्रॉम द ओव्यूल्स एंड ईच सीड, हर एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव सीड गोड के थ्रू सेफ गार्ड किया गया है। नेक्स्ट वी हैव डिस्पर्जल ऑफ सीड। सो वी नो कि प्लांट्स जो है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड जब ये सीड्स बिलो द प्लांट, प्लांट के बिल्कुल नीचे फॉल करती हैं, ये ग्रो करना स्टार्ट करती हैं, बट दे विल नॉट गेट इनफ स्पेस। लेकिन अगर ये सारी सीड्स जस्ट बिलो द पेरेंट प्लांट फॉल करेंगी तो इन्हें एक इनफ स्पेस नहीं मिलता प्रॉपरली ग्रो करने के लिए।
ठीक है, इनफ स्पेस, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, इन सभी के लिए उनके बीच में एक बहुत हाई कंपटीशन हो जाता है फिर, सो दे डाई। तो फिर इसीलिए कुछ चीज ऐसी होती हैं जो डाई हो जाती है। बट नेचर हैज अरेंज सम एजेस, इसीलिए नेचर ने कुछ एजेस अरेंज किए हैं सीड्स के डिस्पर्जन के लिए, सो दैट इस सीड्स को स्कैटर किया जा सके ओवर अ लार्ज एरिया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ सीड। ठीक है, सो व्हाट आर द एजेस? नंबर 1 इज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय विंड। ठीक है, सो इट इज कॉमन इन सीड्स, ऐसी सीड्स जिनमें हेयर और विंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें सीड डिस्पर्जन मोस्टली विंड के थ्रू ही होता है। ठीक है, कॉटन, सनफ्लावर एंड ओक, इनकी सीड्स में कुछ फाइन फिलामेंट यानी कि हेयर प्रेजेंट होते हैं अराउंड देम। ड्रमस्टिक एंड मैपल, इनकी सीड्स में विंग लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, जो कि सीड्स को हेल्प करते हैं कि वो विंड के थ्रू एक डिस्टेंस तक कैरिड अवे होती है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय वाटर। सो सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स और सीड्स हैं जो कि जिनके पास फ्लोटिंग एबिलिटी भी होती है। कोकोनट फ्रूट्स के पास एक थिक फाइब्रस आउटर कोट होता है जो कि उन्हें वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करता है, एंड इट कुड बी कैरिड अवे टू फार ऑफ प्लेसेस। देन लिली एंड लोटस फ्रूट्स, इनमें स्पॉन्जी आउटर कोट होता है जिसके थ्रू ये वाटर पे फ्लोट करती हैं, एंड देन दे मूव टू अनदर प्लेस। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। सो फ्रूट्स एक अट्रैक्टिव फूड है वेरियस एनिमल्स के लिए, बट आफ्टर ईटिंग फूड खाने के बाद एनिमल्स क्या कर देते हैं? वेस्ट को एक्सपेल कर देते हैं जिसके अंदर सीड्स भी होती हैं। सो इस तरीके से सीड्स जो हैं जैसे ही एक प्लेस पे जाके फॉल होंगी, दे कैन टेक रूट एंड ग्रो इन द प्लेसेस फार फ्रॉम द प्लांट दैट प्रोड्यूस्ड देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा कुछ सीड्स हैं जिनमें स्पाइनी होती हैं, जो सीड्स हुक्ड और स्टिकी होती हैं, यानी किसी एनिमल बॉडी के साथ अटैच होके डिस्टेंट प्लेसेस तक कैरिड अवे की जाती है, फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथियम एंड मार्टिनिया। एंड द लास्ट वी हैव मोर डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो एक जर्क के साथ बर्स्ट होते हैं एंड उनकी सीड्स पेरेंट प्लांट से काफ़ी डिस्टेंस तक डिस्पर्स हो जाती है। ये आपका कैस्टर, पी एंड जो बाल्सम प्लांट्स हैं उनमें मोस्टली डिस्पर्जल ऑफ सीड्स ऐसे ही होता है एक्सप्लोजन के थ्रू। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन सीड जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, एंड इस तरीके से सीड्स आपकी पेरेंट प्लांट से दूर जाके स्कैटर होती है, एंड जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं कि सीड्स जर्मिनेट हो जाती हैं, एंड देन दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ऑलराइट, the chapter is completed over here. That was all about the different modes of reproduction in the plants. And I hope that you must have understood the chapter very carefully with very clarity. Now, let's meet in the next session with a new topic. So then keep learning well, keep doing well, and thanks to everyone.